Poland, and I would like to welcome our principal, Deshbandhu College, Dr. Rajiv Agarwal, all the speakers across the globe, all the participants across the globe, yogacharyas from yoga studios, and the students from different school, colleges, and universities. Once again, I would like to welcome you all. Om Dhanvantraya Namaha. This mantra is considered one of the most healing mantras of the ancient Sanskrit, and mantra that is beneficial for physical, mental, and psychological problem. It helps to recover from chronic disease and other body ailments. It is said that even listening to this mantra daily can improve your vitality, health, and longevity. I would take immense pleasure to introduce our today's speaker on yoga therapy to heal during this pandemic, Dr. Nina Buzishevsky. I hope I'm pronouncing correct. I have practiced a lot. Director of Postgraduate Studies of Classical Yoga, Assistant Professor, Institute of Indology, University of Wrocław, Poland, author of The Himalayan in Search of the Yogis. So welcome once again, and the floor is all yours. Thank you so much. First of all, I would like to thank you for inviting me for such a great event across the world. I think it's the first time that we celebrate the International Yoga Day in such a great way. So thank you so much. Yes, and you pronounced well my name, Nina Budziszewska, and Wrocław or Wrocław, as you wish. Yes, we can spell it in two ways. So my today's speech or talking, it's about yoga therapy or yoga chikitsa, we can even say. Yoga chikitsa in troubled times, in troubled world, because of course, pandemic time, because of the condition of our civilization. So yes, we are living in exigent times. We have we suffer of many biological issues. We have to realize many social requirements. Our workplace is very often very hard. We are living in this civilization of consumption and hurry, and now well-known lockdown, both external because of the virus, but we can say also that we are living in some kind of internal lockdown, our own emotional seclusion or isolation. And by troubled world, by troubled times, I understand every situation, every condition which is stressful and painful. Everything that we can call by, well, Sanskrit term dukkha, sarvam dukkham. So what to do when we are in such a bad or painful condition? What to do? I think that this is the excellent time, this is the excellent moment when we can apply yoga, when we can rebuild yoga understood as a harmony, union, connection inside every level of our own reality, on the mental level, energetic level, physical level. Yoga as union, as harmony within our society, or in general, in world, and yoga with the nature, with Mother Nature, with Prakriti, or more or less Shakti. Yes, so this is what I want to tell. So as we all know, yoga is a complex system of lifestyle, which comprises at least 4 levels. At least, of course. The first one
We all know that yoga is a darshana, one of the oldest Indian tradition. Secondly, we can call yoga moksha vidya. Moksha vidya, this is my name, I don't know. Moksha vidya, a search of even acquiring, a quest for moksha. Third, we have quite a new notion from medicine, mind-body interventions with S at the end. Mind-body interventions, so a sort of complementary medicine. Yoga is one of these mind-body interventions. And at fourth place, yoga as Atma Abhyasa or Sva Abhyasa. The discipline, the practice, our own practice. Of course, the practice which is aiming at Atman, at our, of course, our subtlest level. It can be also called this Atma Abhyasa as self-discipline under guidance of one's guru, after having blessing from guru. So for this reason, so-called therapy of yoga, yoga chikitsa, is also a multi-layered process which embraces several activities on human structure, on human composition, and on one's environment. In my book, I wrote that yoga is not a religion, neither is a type of fitness routine or sport. Yoga is spirituality, grosso modo, a slow embedding and deepening of your everyday consciousness within something that we can call, for lack of better word, of course, a sacrum, which according to the Indian understanding of the universe is omnipresent. So by yoga, through yoga, using yoga means we try to reconnect with this sacred realm, sacred reality, which is omnipresent. So I want to start with practice with yoga chikitsa as a darshana, as I said, within these four fields of yoga understanding. So in general, as we all know, darshana is philosophy, a wisdom of how universe is functioning. It is also a vision or a special perception or even experience, vivid and authentic experience of life in its visible and invisible forms, vyakta, avyakta, from Krishna's word, from the Bhagavad Gita. This is a quest for wisdom, jnana or vidya, or even viveka, the discriminative knowledge, which is gained through one's body and mind practices. It is also a very unique anthropology based on the role of bandhu. Bandhu as the connection on even the identity between micro, and the macrocosmos, between a human being, between humans and the universe, understood as the prakriti, the visible forms of the universe, of divine. And the prakriti comprises both the internal and external world. However, as we know, there is a little particle, an amsha from the Mahabharata, an amsha of Vishnu or Shiva, Krishna, an amsha of the Brahman, and this amsha, Atma Hridaya Sthitaha, is within our heart. In the Kharanda Sanhita, one of the three well-known works of the Hatha yoga tradition, Kharanda Sanhita is written around 17th or 16th century. We can read, Nasti Maya Samach Pasho, Nasti Yogat Parambalam, Nasti Jnanat Paro Bandhur, Naham Karat Paro Ripuh. For me, this is the motto, the main phrase about yoga. So there is no fetter like those of illusion, of Maya,
No strength, no force, no power like this of yoga. There is no friend higher than jnana, and no greater enemy than ego sense, than ahankara. So let me read it once more in Sanskrit. Nasti maya samah pasho, nasti yogat param balam, nasti jnanat paro bandhu, naham karat paro ripuh. So this darshana, yoga darshana, is aiming at this understanding. Secondly, moksha, how to impact, how to apply the query of moksha within our everyday life. So moksha is the act or an act of getting the mastery over prakriti or kshetra, understood as field or body, kshetra. So kshetra can be field of experience, as word, as the reality, as even our life, as well as our body-mind structure. So this mastery over prakriti, through this mastery over prakriti, we became kshetra jna, the knowers of kshetra, even the possessor of this kshetra through jnana, through activation of jnana. It is realized through calming one's chitta or manas and prana by tapas, by austerities, of course, by breath extension, by asanas, dharanas, and guru blessings, and also guru protection. Eventually, moksha is the experience of the ultimate bliss, freedom and happiness, called simply moksha, kaivalya, samadhi even. So it is not about the words, but about practice. Yoga Darshana, it's not about only the words. It's not about only the pure analysis, not about the reflection, meditation about how the word is functioning, what is the word, who we are, but about practicing it through a very special mean, a very special instrument, which is our mind, body, breath structure. So we get this jnana, so we get our freedom in everyday life through constant and regular tapas or abhyasa. And thirdly, chikitsa. Before I reflected a lot about what is chikitsa. What can be ill and damaged inside of us? What can die? What can be strong and healthy? What part of us? Secondly, what can be cured? Is it only our body? What can be cured? If it is our soul, our heart, our mind that can be cured, what does it mean? What is out of samsara? What is in never-changing bliss, state of bliss? And of course, what is illness? What is mala? And the answer for the first question, what can be ill or damaged? What can die? What can be stronger, healthier? Of course, our body. What can be cured? I think we have here at least two answers. At least, of course. The first one is body, mind, or our manas, our chitta can be cured. And secondly, the possessor, shariri, or dehin, the possessor of our body and mind. So the question is how we can become the possessors of our body, how we can become sharirins or dehins, or jivas even, jivas. What is out of samsara? Of course, Atman, or Purusha. And what is illness? What is mala in Sanskrit? So mala can be analyzed at least on two levels. The first one, mala of body, and secondly, mala of mind. They are not totally separate. They are in constant interaction. When we feel any pain within our body, we feel it also in our mind.
When our mental, our energetic, or even emotional level reality is suffering, so does the body. So this interaction is in constant activity. And mala of mind are fourth, emotional, of course. Secondly, mental. Here I say in accordance with the Sanat Sujatiya, the famous speech, philosophical speech, put in the 5th book in Udyoga Parvan of the Mahabharata. Here the mental son of Brahma, called Sanat Sujata, informs Dhritarashtra that human beings die not because of bodies. We die because of moha and because of pramada. Moha is a kind of delusion, a kind of lack of knowledge. Even when we are not in the normal state of our consciousness, we are in moha. And of course, all our life or our consciousness, if it's not connected to Purusha state, if it's not in Sattva state, it's moha. It's moha. And second reason for death or of dying, it's pramada, lack of concentration, lack of, we can even say, lack of pratyahara, lack of dharana, and lack of ekatva. Ekatva understood as the unity of mind, body, and breath. Lack of the unity with sattva state, with the pureness within ourselves. There is also mala of mind at the energetic level, pranic level. And energetic level understood as subconsciousness, the level of subconsciousness. The famous teaching of Maharishi Patanjali about vasanas, about sanskaras. And also, malas of the mind can be caused by bhutas, like ghosts, and by nakshatras, destinies or stars, planets, in general by nakshatras. Thus, we have three vidyas, we have Trividya, Yoga, Ayurveda, and Jyotisha Vedanga. And many times when I was in India, many times I heard that if you want to talk about yoga, if you want to understand yoga, we also have think about Ayurveda and about Jyotisha Vedanga. So mala is also, according to Ayurveda and to yoga also, mala is caused by the bad management of vayu or prana, by the bad management of the essence of our breath, our breathing process. This results in indigestion or blockages of Agni, of internal fire, so that tapas cannot be activated. Tapas understood as the practice of austerities, or the practice of yoga in general, or tapas as the internal heat. So without this management of vayu or prana, we cannot activate tapas. All is based on, of course, avidya and lack of jnana. As Sri Yukteswar wrote, Sri Yukteswar, the master of Paramahansa Yogananda, through avidya, one believes that this material creation is the only thing that exists, forgetting that the world is nothing, is a mere play of ideas of the eternal spirit, of the eternal seer. Everything is a play of, we can call it eternal mind, eternal spirit, and we forget about this.
all is based of this avidya, this forgetting, and of lack of nishchala, stillness, this synonym of ekatva, synonym even of dharana, nishchala, of breath, mind, body. So how to calm vayu or prana? Sometimes in the Mahabharata we can read about 5 vayus, sometimes about 5 pranas. So I use this 2 terms as a one term. So on the level of mind, we are practicing. We practice breath control, eventually aiming at kumbhaka or parama pranayama kumbhaka. Even Kevala kumbhaka, very difficult, of course, as we all know, to attain. On the level of body and internal agni, by fast or fasting. On the level of manas or chitta, by both, by this breath control and kumbhakas, and by fasting, within the process of Ashtanga yoga, well-known Ashtanga yoga from the classical rules of Maharishi Patanjali. But what is important, yoga can be seen also in a different way. We all know that yoga is Ashtanga yoga, but also yoga has other understandings, other meanings. They are all complementary. So let me allow to present them to you, or to represent, because I know that we all know it, so to recall us. From Maitri Upanishad, in the Maitri Upanishad we find 6-fold yoga. Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana, Tarka. They are a strong debates. What is Tarka? Tarka, and Samadhi. There is no asanas here. There is no yama and niyama. Yamas and niyamas here. But we have Tarka, like a maybe right understanding, right vision, right thoughts, right contemplation. In the Bhagavad Gita, we find many instructions about yoga. I want to speak about 3 from the second book. Samatvam yoga uchyate. Samatvam yoga uchyate. So yoga is the state of sama. Is the state of equality. Looking on everything with the same eyes. With the same eyes, with the same attitude, with the same feeling. Secondly, samadhav achala buddhis tada yogam avapsyasi. When buddhi is achala, when buddhi is still, is not moving, and put in the samadhi state, then you can speak about yoga. Then you attain yoga, avapsyasi. And at the end of the second book, Niksprihach, Nirmamo, Nirahamkarach, Sa Shantim Adhigachhati. So one who is not touched by anything, who is not touched by internal words, by internal objects, not touched but by even one's own feelings, one's own thoughts, one's own energies, who is nirmama, without the feeling of this is mine, minus, we can even say, without this minus, mine, nir ahamkarach, without the feeling of ego or I, without aham, sa shantim agachhati, he or she, he, because this is sa, he is he attains shanti. In Gheranda Sanhita, in the book number 7, we read, Samadhishcha para yogo bahu bhakyena labhyate.
guruho kripa prasadena prapyate guru bhaktitah. Samadhi is the greatest yoga. It is acquired by the great fortune, obtained by the grace and kindness of the guru, of one's guru, and by intense devotion to him. Finally, well-known Yoga Sutra of course, yoga is chitta vritti nirodhaha. Yoga is the cessation of or stoppage of vrittis, of mind modifications, fluctuation of everything which is called our mind, chitta. Tada drashtuhu svarupe vasthana. Then the seer dwells in his own state. Tada drashtuhu svarupe vasthana. Vritti sarupyam itaratra. In other times, the seer appears to assume the form of the vrittis. And almost at the end, because of course yoga is nirodhaha, chitta vritti nirodhaha, but yoga is also samadhi, and not usual samadhi, but nirbija samadhi, asamprajñata samadhi, without bija, without samprajñata, understood as whatever thought, whatever feeling, whatever identity we have, whatever pillar we have, this is not nirbija. Without anything, without any pillar of our ego, this is nirbija samadhi. So tasyapi nirodhe sarva nirodham nirbijah samadhi. After the ultimate cessation, the sarva bija, the sarva nirodha, we have sarva samadhi, we have nirodha samadhi. But second book of the Yoga Sutras instructs us about the Kriya Yoga. Tapas, svadhyaye shvara pranidhanani Kriya Yogaha. Tapas, or austerity or study, self-discipline, as mental, moral and physical level. Svadhyaya, repetition of sacred mantras or study of sacred literature. And Ishvara Pranidhana, complete bhakti, complete surrender to God, because as we know, Pranidhana is fix, the absolute fix within something. So the absolute fixation within God, this is Kriya Yoga. So Kriya Yoga is the attenuation of kleshas or impurities. A man without discipline, without tapas, cannot attain perfection in yoga. This lack of discipline is caused by mental impurities called kleshas. These impurities in the mind arises out of the worldly objects. They are colored by the asanas or samskaras of action and affliction from beginningless time, and still they cannot be got rid or dissipated without the practice of tapas. To dissipate them, one has to practice stronger tapas, practice of silence, breath control, and surrender the fruits of actions to God. Tapas restrain natural afflictive acts. When kleshas became thin, then they became ready for extinction by discriminative knowledge, which goes by the names of samprajñata or viveka. A klesha reduced by samprajñata to an unproductive state
does not give rise to modification of the mind. For example, I am the body, I am my feelings, I am my thoughts, I am my pain or suffering. This is an afflictive belief based of lack of the knowledge. When through the force of samadhi, even samprajñata samadhi, the first level of samadhi, when the pure essence is realized, when we are in sattva state, it is correctly seen that I am not the body, nor chitta. The impression of I am the body is born from kleshas, while the impression of the notion I am not the body is born of true knowledge called prajna, sanskara. And it generates this prajna sanskara, the distinction between buddhi and purusha. But the first question is how we can apply it in our everyday practice. Is it good to apply these classical yoga rules to our everyday life? How to live by these rules of transcendence, which are not always possible to apply in our daily life. How? I found at least two possibilities. The first one is Dhamma, or self-discipline, which leads to ekatva, to sattva, by regular and steady practice, or regular and steady abhyasa through asanas, dharanas, and guru blessings, and ethical behavior, or hrid shaucha, the pureness of heart, hrid shaucha. Of course, the niyamas and niyamas, and so-called moksha dharmas, the duties of moksha. And from the 12th book of the Mahabharata, from the Shanti Parvan, in the Shanti Parvan we read, Kshama dhritir ahimsa cha samata satyam arjavam, Indriya vajayo dakshyam mardavam dhrir achapalam, akarpanyam asamrabhah samtoshah priyavadita, vivitsa nasujata chapyasham samudayo damah. Patience, forbearance, constancy, ahimsa, sameness, satya, honesty, overcoming the senses, cleverness, softness, modesty, stillness, force of our heart, of course, calm, satisfaction, sweet talk, desire of knowing, freedom from envy and every evil feeling, they are a set of Dhamma. They are a set of self-discipline. According to Maharishi Patanjali, we can apply the rules of yoga through two ethical features, Maitri and Karuna. Maitri as the feeling of friendship and Karuna as compassion, of course. And through Atma Vidya, constant knowledge, constantly realize knowledge of who we are, who is the universe. So in this perspective, moksha can be understood as the ultimate health. And the yoga chikitsa is a way to attain this state. Moreover, there is also a lower chikitsa, medicine, or to be more precise, complementary medicine, where yoga is limited to posture, to asanas, breath techniques, and many methods of modification. And we can also ask, is it still classical yoga? Is it still yoga? Can we call it yoga in the classical sense? Kuvalayananda answers yes. Krishnamacharya and his pupils too. With its subtler level of Ishvara, we can practice of this subtler level, but we can also concentrate ourselves in asanas, pranayamas, dharanas,
in openness to dhyana. So we can understand yoga or yoga chikitsa at the two levels, the highest levels of moksha and the lower level as a complementary medicine. I think that in 2014 or 2000, something around 2014, the National Institute of Health introduced the notion of mind-body interventions, MBI. And these interventions utilize the mind's capacity to affect the body and its physiological responses. Mind-body medicine focuses on the interaction between mind and body and the powerful ways in which emotional, mental, social, and even spiritual factors can directly affect health. Mind-body interventions include relaxation, biofeedback, meditation, tai chi, yoga, and others. They often help patients experience healing for their illness in a new and different way. Complementary and alternative medicine, in short CAM, complementary and alternative medicine, sees yoga as a healing system of theory and practice, and a combination of breathing exercises, physical exercises as asanas, and meditation practice for over 500, at least 500 years. A survey released in 2004 by the National Center for Complementary and Alternative Medicine called yoga one of the most popular CAM therapy. Yoga is considered as a mind-body intervention that is used to reduce the health effects of stress. Yoga is believed to calm the nervous system, more precise, sympathetic nervous system, and balance the body, mind, and heart. It is thought by its practitioners to prevent specific disease and maladies by keeping the energy flows, streams open, and energy life, prana, flowing. But also yoga has been used to lower blood pressure, reduce stress, and improve coordination, flexibility, concentration, sleep, and digestion. I think that it's all about this vayu, this prana, this uncontrolled energy. On the mental level, felt as emotional and thoughts. On the life force level, understood as the unconcentration, a dissipation even of prana. In the Anugita, the topic of my recent studies, in the Anugita, the philosophical teaching from the 14th book of the Mahabharata, Ashvamedha Parva, I want to, at the end, quote you a very interesting fragment. This is the teaching made by Lord Krishna to Arjuna about tapas. So, Aranim Brahmanim Vidhi Gurur Asya Asyotaranich Tapak Shrute Abhimandhito Jnana Agnir Jayate Tatach. Know as the imperative form, know the devotee of Brahman as the lower Arani, and Guru as a higher Arani. Tapas and sacred text provide the friction, provide the heat. Thus, the fire of knowledge is generated. And thanks of this yoga instructor, yoga ethical instructor about tapas, one is sweet, one is happy, one is beautiful, free from dukkha, loved by everybody, humans, God, and siddhas.
And we cannot treat ourselves as a structure which is divided into body and mind. We are holistic being. So let me finish by this phrase. To be healthy, a human being needs fresh air, clean water, sun, exercises, deep relationship as love, friendship, co-workers. One needs also intellectual satisfaction, spiritual experience, and beauty. A human being is a holistic entity, composed of body, mind, and heart, Atman, Prajna, Purusha, Dehin, as we wish. And for good health, one should fit the wholeness, not only one's body. Thank you so much. Wow, Dr. Nina, that was amazing. And I must congratulate you. You must have motivated so many people to go deep and deep understanding with Sanskrita, with Shloka, and you have a great wisdom. And you also have communicated giving the mantra of quest of wisdom. Yoga is quest of wisdom. It is not an exercise for fitness. It is not a religion. It is a quest of wisdom. And self-discipline, self-awareness, that is a real yoga. And if you become self-aware, then you can go deep as a yoga therapy. Thank you. Thanks a lot. And I would like to take a question. There is one question only, and people are congratulating you for nice presentation. Thank you for your precious time in so early hours at Poland. How can we... Welcome. We said in Hindi, Swagatam. How can we get rid of moha? Of moha? Moha. Yeah. Moha, so according to Sanat Sujata teaching, because this is from the 5th book of the Mahabharata, from the Udyoga Parvan, I know once, because Sanat Sujata answers by a beautiful teaching, one shloka, that through the practice, or not through the practice, because we are not Mahamuni, we not become Mahamuni by dwelling in a forest, not by normal practice, but by gaining knowledge of Akshara. If you know what is Akshara, what is Pranava, what is Om, we can get rid of moha. So by constant, never-lasting practice, we can get rid of moha. Wow. So this is the answer of Sanat Sujata. Okay. One of the mental son of Brahma. Right. And one more question. What is the difference between Chitta and Man? And Manas? Yeah. So for understand Chitta, for explain Chitta, I use the explanation, of course, of Maharishi Patanjali. For him, Chitta as is almost the same as for Ishvara Krishna, the author of Sankhya Karika. So Chitta comprises 3 levels. First one is, of course, Manas, as the organ of senses, the material data, the material information goes by 5 senses, and they are stored in Manas. And Manas, which is based on Sanskrit root man, which is to think, to feel, to understand, to have doubts, to whatever we have in our mind, this is expressed by the Sanskrit root man. So the first level of Chitta is Manas. Then we have Asmita, the feeling of I. Asmi, like I am, so ta I-amness. And then Buddhi, the faculty of decision. I want something, I don't want something. So I use Buddhi to choose something.
So this is Chitta according to Maharishi Patanjali. In Advaita Vedanta, Chitta is a little bit something else. And Manas, according to pre-classical instruction in the Mahabharata, is the lowest level of Chitta. As the mental faculty connected to mind. Whatever is in our head, it's Manas. According to the Mahabharata. Wow, that's a great explanation. And thank you for all comments. Thank you so much. Thank you so much. And once again, I would like to thank you for your precious time you have spared for us. And it's a very great learning, very great listening to you. Thank you. Namaste from India. Thank you. Thank you. And namaste from Poland. Namaste. From Polandesia. Wow. So now I would like to request our second speaker, Dr. Ramesh Kumar from India. Dr. Ramesh Kumar is Assistant Professor with Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi. He is a Yoga World Champion. He has won Yoga World Championship in Portugal 2003. He was a student of our Delhi University. We are proud of you, sir, from Dr. Hansraj College, and he has won individual gold medal in All India Inter-University. He is UGC net qualified and very much experienced, spoken presented research papers in national and international conferences. I would like to welcome Dr. Ramesh Kumar from all of us from the fraternity of Deshbandhu College. We welcome you, sir. Dr. Ramesh Kumar. Can you hear me, Dr. Ramesh? आपका माइक ऑफ है, डॉक्टर रमेश. डॉक्टर आदित्य, प्लीज माइक ऑन कीजिए. नाउ ट्राई, डॉक्टर रमेश. यस मैम. या, वेलकम. नमस्कार. नमस्कार मैम, धन्यवाद. धन्यवाद आपका. सो यू हैव वेटेड फॉर अस. शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिः सर्वन्तु नः. ओम शांति शांति शांति. ओम. विदुषी बहनों, विद्वान साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के आयोजक एवं जिनका सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है कॉलेज को, ऐसे प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम की रीड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजुम पांडियाल जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, आयोजकों का इस आयोजन पर धन्यवाद करता हूं और श्रोताओं का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं. साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है और आप सभी के साथ साथ मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे कई गुरुजी इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर जुड़े रहते हैं और श्रोताओं को सुनते रहते हैं. तो उन गुरुजनों को मैं नाजिर हाजिर समझ के प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं. डॉक्टर रमेश, आपके गुरुजी मिस्टर गिरीश झा जी आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं. धन्यवाद. मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि वो इसी प्रकार से मेरे जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके आशीर्वाद से दिन रात उन्नति करता रहूंगा और उनके दिए हुए जो योग का मार्ग है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा. विद्वान साथियों, आज का मेरा जो विषय है वो है योग एक रोजगार परक शिक्षा, योगा एज ए कैरियर ओरिएंटल एजुकेशन. हम कई बार देखते हैं कि योग के क्षेत्र में
क्यों आए? लोग सोचते हैं कि हम क्यों आए? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में उसी शिक्षा का महत्व ज़्यादा होता है जिसमें रोज़गार ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन आज के समय में योग का क्षेत्र भी एक रोज़गार का क्षेत्र बन चुका है। उससे पहले कि किस-किस जगह पे हम रोज़गार के क्षेत्र को देख सकते हैं, मैं योग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं योग के विकास क्रम की बात करूँगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारे देश के अंदर अनेक साधु संत, अनेक स्वामी, ऋषि, महर्षि हुए हैं, जिन्होंने योग का प्रचार-प्रसार किया। जिनके प्रचार-प्रसार के कारण ही आज हम योग शिक्षा को प्राप्त कर पाए हैं और अपने जीवन को योग में बना पाए हैं। इनमें जो मुख्य रूप से हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद सरस्वती हैं, स्वामी कुलानंद जी हैं, स्वामी शिवानंद जी हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। और थोड़े से समय पहले की बात करते हैं तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, जिनके कारण से आज जितने भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, योग के पदों पर जो प्रतिष्ठित योग शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, ये उन्हीं की महती कृपा है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की। इस प्रकार के अनेक संतों और महात्माओं ने योग का प्रचार प्रसार किया और जनमानस तक जो गुफाओं की योग विद्या थी, जो गुरुकुलों की, आश्रमों की, स्वामियों की केवल जो एक धरोहर थी, उसका प्रचार प्रसार करके हम तक पहुंचाया। इनके लिए मैं इनके सत सत नमन करता हूँ, इन सभी संतों को, महात्माओं को, अपने पूर्वजों को, जिनके कारण से आज हमने योग प्राप्त किया। अब मैं आधुनिक समय की बात करता हूँ। आधुनिक समय में योग का जो विकास क्रम है, वो हम देख रहे हैं कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के माध्यम में सामंजस्य स्थापित करना जो है आज योग का उद्देश्य बन गया है। और इस उद्देश्य को नई दिशा देने वाले सभी जानते हैं, जाने माने स्वामी बाबा रामदेव जी हैं, जिन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्ति का एक साधन समाज के अंदर दिया है, एक जन जागृति फैलाई है, एक जन जन तक, जिस प्रकार से कुछ समय पहले तक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दूरदर्शन पे आकर के योग को एक क्रांतिकारी कदम उठा करके रोजगार परक बनाया था और जन जागृति लेके आए थे। लेकिन ईश्वर को शायद उनका लंबा समय मंजूर नहीं था। लेकिन आधुनिक समय की बात करें, अब की बात करें, आज की बात करें, तो स्वामी रामदेव जी उसी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं और योग के क्षेत्र में क्रांति के रूप में और लोगों के जनमानस के, एक साधारण से साधारण गांव का व्यक्ति भी जो है स्वामी रामदेव जी के योग की चर्चा करता है। तो हम ये कहेंगे कि योग क्रांति के रूप में यदि हम किसी को जानते हैं तो ऐसे स्वामी रामदेव जी को हम जानते हैं। अब हम समय समय पर योग के मीनिंग, योग के अर्थ क्या रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है किसी भी विषय वस्तु से अपने काम की चीज निकाल लेता है। यदि मुझे को लगता है कि ये पंक्ति मेरे काम की है तो वो पंक्ति मैं ले लेता हूँ, आगे पीछे का छोड़ देता हूँ। ऐसे ही वैदिक काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में हमने संस्कृत से आयुर्वेद को, संस्कृत से योग को, संस्कृत से ज्योतिष को, संस्कृत से वस्तु शास्त्र को निकाला है। लेकिन योग के क्षेत्र में हमारी क्या मान्यता रही है वैदिक काल में और मध्य काल में और आधुनिक काल में, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल में जो योग का तात्पर्य था वो मोक्ष प्राप्त करने का था। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि, अर्थात वैदिक काल में जो है वो केवल और केवल ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर का ध्यान करना और समाधि की अवस्था को प्राप्त करना योग का उपयोगिता थी, योग का महत्व था, योग की इंपोर्टेंस थी। मतलब योग केवल समाधि के लिए ही प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं पुरुषार्थ सुनानाम गुणानाम प्रतिपस्व केवल्यम, कि ये जो सत्व रज तम तीन गुणों से जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, ये यदि मूल प्रकृति में ये सत्व रज तम चले जाएंगे तो ये आत्मा जो है उस परमात्मा में केवल्य की प्राप्ति कर लेगी या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वैदिक काल में जो हमारा योग का लक्ष्य था वो था मोक्ष को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, केवल्य को प्राप्त करना। अब हम देखते हैं मध्य काल में योग का तात्पर्य क्या है, कि मध्य काल में योग का तात्पर्य था आत्मा का कल्याण। तो आत्मा का कल्याण कैसे? तो हमारे उपनिषदों में कहा सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जिससे मुक्ति मिल जाए, जिससे हम विमुक्त हो जाएं, क्योंकि और विमुक्त किससे होना है कि बंधनों से विमुक्त होना है। किस बंधन से मुक्त होना है? ये सांसारिक जो बंधन है, मोह माया राग द्वेष ईर्ष्या, ये जो सांसारिक बंधन है,
उससे जो मुक्त कर दे वो विद्या है। तो वो क्या है? योग विद्या है। योग विद्या ही हमें इन सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकती है और उस परम चेतना की तरफ अग्रसर कर सकती है। इसी में हम कहते हैं मृत्यु और माँ अमृतम गए। हे परम पिता परमात्मा, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो, अर्थात मोक्ष की ओर ले चलो। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक काल में जहाँ समाधि की बात थी, वहीं मध्य काल में जो है वो मुक्ति की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर, अपने आत्मा के कल्याण की ओर, अपने आत्मा का कल्याण करके मृत्यु से अमृत तत्व की ओर जाने की बात हम करते हैं। और जब हम आधुनिक समय की बात करते हैं तब केवल एक की बात होती है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार सम। अब यहाँ किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं चाहिए, आत्मा का कल्याण नहीं चाहिए। हालांकि ये जो सुक्ति है ये आयुर्वेद की है, लेकिन ये योग पे विस्तृत बैठती है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हम क्या चाहते हैं? स्वस्थ स्वास्थ्य चाहते हैं। और आतुरस्य विकार समनम, तो जो बीमार व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, अर्थात उनकी बीमारी का निराकरण करना। और जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को मेंटेन रखना, रक्षा करना। आज कोरोना महामारी चली हुई है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं पहले से, जिनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो इस कोरोना से प्रभावित नहीं होते हैं। ये आज आप हजारों पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, न्यूज चैनल्स पे आप देख रहे हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो उस वायरस से प्रभावित हो जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन रिकॉल वही हो पाता है जिसके अंदर अपनी इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो आज के समय में ये सुक्ति है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आतुरस्य विकार समनम, कि जो बीमार व्यक्ति हैं, जो जिनके अंदर व्याधियां हैं, उन व्याधियों को समाप्त करके स्वस्थ करना आज योग का ध्येय बन चुका है। अब यदि थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारा ध्येय जो है वो रोजगार है, पैसे कमाना है। क्योंकि अब बिना पैसे कुछ नहीं है। जहाँ स्वास्थ्य भी पैसे से मिलता है, दवाई भी पैसे से मिलती है, तो रोजगार बहुत जरूरी है। तो देख रहे हैं कि आधुनिक समय में है वो योग का जो तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से। सही शब्दों में यदि हम इसको बोलते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हों। हमारा योग का मुख्य उद्देश्य है सुखी होना। योगस्मत्वम उच्यते, और सम अवस्था में हम रहें, प्रसन्न रहें, हरदम आनंदित रहें, ये योग का परम लक्ष्य था। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि योग के क्षेत्र में रोजगार पर अपार संभावनाएं क्या क्या है। तो कह रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं कि चाहे वो विकसित देश हों या विकासशील, दोनों तरह को जो देश के लोग हैं, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, आमूल परिवर्तन आ गया है। और आमूल परिवर्तन के कारण ही योग में रोजगार के क्षेत्र के अपार संभावनाएं बढ़ गई। यदि हमारा रहन सहन, खान पान, ये सारा का सारा परिवर्तित नहीं होता तो शायद हमारे योग का इतना महत्व नहीं बढ़ता। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, पूरे विश्व के अंदर आज जो हमारे खान पान और जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है और खान पान की गुणवत्ता में जो परिवर्तन आया है, उसी के कारण से योग जो है वो एक बिजनेस बन गया है, रोजगार परक क्षेत्र बन गया है। रोजगार के अवसरों के अनंत द्वार खुले हुए हैं आज के उसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रोजगार के क्षेत्र में केवल शहरी ही लोगों का पदार्पण नहीं है। इसके अंदर ग्रामीण लोग हों या शहरी लोग हों, जो योग में दीक्षित है, योग में शिक्षित है, योग में जिसने डिप्लोमा डिग्री किया है, उन सब के लिए आज अपार संभावनाएं हैं और अपने जीवन को रोजगार, योग के क्षेत्र में रोजगार के लिए लगा सकते हैं और अच्छा जीवन यापन के लिए योग आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में योग का क्या रोल है। तो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम छोटी यूनिट से काम करते हैं कि बच्चों के अंदर बढ़ते तनाव को योग अभ्यास से हम कम कर सकते हैं। योग अभ्यास से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्तर को हम मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे माहौल, हमारे सोसाइटी में, हमारे घर के आसपास में, अपने घर में
अपने कॉलोनी में, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है। क्योंकि पहले हम बहुत ज़्यादा खेलते थे और थोड़ा पढ़ते थे। अब हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पेरेंट्स कहते हैं 99.1 कैसे आया, 100 क्यों नहीं आया? इतनी प्रतिस्पर्धा जब हो गई है, तो बच्चे बड़े तनाव में आ गए, बड़े तनावग्रस्त हो गए हैं। अब उनको जो बाहर खेलने की स्वतंत्रता थी, जो हमारे टाइम में खूब बाहर दौड़ते रहते थे, खूब खेलते थे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, तो उससे शरीर हष्ट-पुष्ट और मजबूत रहता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि बाहर खेलना तो बस मुश्किल से ही किसी को नसीब होता है। पहली बात तो हमारा रहन-सहन इस प्रकार का हो गया, दूसरी बात हमारे पास खेल के लिए मैदान नहीं है, क्षेत्र नहीं है, पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है और तीसरी बात है कि प्रतिस्पर्धा की भावना। ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बात है कि हम बच्चों को कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, हम बच्चों को मशीन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं 100 में से 100 नंबर लेके आए, जो कि ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में घातक है। और ज़्यादा परेशान होने के बाद अक्सर हम हर परिणाम के बाद देखते हैं कि बच्चों ने आधे-आधे नंबर के लिए फांसी खा ली है और आत्महत्या कर ली है। तो इसलिए सर्वप्रथम जो है शिक्षा के क्षेत्र में योग जो है वो महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। तो कहते हैं कि बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा है, वो योग के माध्यम से हम उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ आज योग भी पढ़ाया जाने लगा है और जब योग पढ़ाया जाने लगेगा, योग कराया जाने लगेगा, तो वहाँ शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। तो जो शिक्षक उस रूप में होगा, उसको नौकरी, सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि अनेक स्कूल, अनेक कॉलेज जो चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो प्राइवेट हों, किसी भी तरीके के हों, सभी के सभी आज कहीं न कहीं योग से जुड़े हुए हैं और योगाचार्यों की सेवा वो अपने विद्यालयों में, अपने महाविद्यालयों में, आज कॉलेजों में, आज यूनिवर्सिटीज़ में योग की पढ़ाई हो रही है ताकि देश के अंदर योग के अधिक से अधिक शिक्षक पैदा हो सकें, योग के अधिक से अधिक शिक्षक अच्छे शिक्षा के साथ मैदान में आ सकें और इस संसार के दुखों को दूर करने के लिए ये इन शिक्षकों का निर्माण विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में किया जा रहा है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो तनाव में ना रहे, वो जीवन को दुःख में ना बनाए, तो योग के माध्यम से उनको ठीक करने के लिए इस प्रकार के शिक्षा का क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएँ प्राप्त होती हैं। योग के अंतर्गत आने वाले जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की थी, मेरे से पूर्व भी अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे, तो जब हम यम की बात करते हैं, तो यम और नियम के पालन से ही केवल मात्र यम से ही दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और कर्तव्य को सिखाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को बड़े-बड़े आसन कराएँ, बड़े-बड़े प्राणायाम कराएँ या सत्कर्म कराएँ, ज़रूरी नहीं है। आप केवल उनको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरदान, केवल उनको सत्य बोलने की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, उससे भी उनका मानसिक, उनका व्यावहारिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। उनका व्यावहारिक पक्ष जो है, वो कुशल हो जाएगा, उसके अंदर उनके अंदर कुशलता आ जाएगी। ऐसे ही नियम से हम बच्चों को स्वयं के अंदर अनुशासन करने की शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व भर के विद्वानों को इस बात को मानने लगे हैं कि योग के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसी कारण से आज हज़ारों स्कूल सरकारी हैं, प्राइवेट है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उनमें आज योग विभाग, योग शिक्षक के रूप में लोगों की नियुक्ति हो रही है और योग जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक रोजगार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी योग के रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र की। जितना व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, व्यक्तिगत जो योग उपयोगी है, उतना ही योग सामाजिक रूप से भी उपयोगी है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और समाज में रहने वाले व्यक्ति जब योग का पालन करने लगते हैं, तो उनके अनुरूप एक सुंदर, संयमित समाज का निर्माण होता है। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे योग मेरे लिए जितना फ़ायदेमंद है, यदि मैं 100 लोगों को योग कराता हूँ, यदि मैं 1000 लोगों को योग कराता हूँ, तो सबके लिए वो उतना ही लाभकारी होगा और सारे लोग योग करेंगे, तो एक सुंदर समाज की संरचना होगी। हम अक्सर ये देखते हैं कि बाबा रामदेव जी कहते रहते हैं
कि जितने भी ये बलात्कारी हैं, जितने भी चैन स्नैचर हैं, जितने भी ये चोर डकैत हैं, इन सबको मुझे दे दो, मैं इनको ठीक कर दूँ। तो कैसे ठीक कर देंगे? तो वो योग का ही मार्ग है जो व्यक्ति की मनस्थिति को परिवर्तन कर देता है और उसकी जो बुराइयां हैं वे छूट जाती हैं। अक्सर अब हम देख रहे हैं सरकार एक प्रचार दे रही है कि कोरोना पीड़ित से दुर्व्यवहार ना करें, व्यक्ति से ना वो करें, कोरोना से करें। अर्थात उसकी बीमारी जो है वो खराब है, व्यक्ति खराब नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति की बुराई खराब है, व्यक्ति खराब नहीं होता है। समय और परिस्थिति उसको बुरा बना सकती हैं। इसलिए स्वामी रामदेव जी बार-बार ये कहते हैं कि इन सबको मैं ठीक कर दूँगा। तो कह रहे हैं कि समाज में यदि हम योग का प्रचार-प्रसार करते हैं, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है, तो एक सुंदर संयमित समाज का निर्माण होता है। महर्षि पतंजलि जी के यम के द्वारा एक सुंदर समाज की संरचना के लिए ही यम का निर्धारण किया। कहने का तात्पर्य है कि महर्षि दयानंद ने जो यम का निर्माण किया है, वो केवल और केवल सामाजिक परिवेश को सुदृढ़ समाज की संरचना के लिए ही बनाया है, ताकि समाज में एक भाईचारा बना रहे, समाज एक स्वस्थ रहे और एक संयमित समाज रहे। क्योंकि समाज यदि स्वस्थ नहीं होगा, समाज की मानसिकता यदि अच्छी नहीं होगी, तो भी योग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो लोग समाज के अंदर जो लोग प्रतिदिन आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास करते हैं, वो सदैव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की जिस जिस जगह पे, जिस स्थान पे, जिस कॉलोनी में इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, धार्मिक गतिविधियां होती हैं, योग का अभ्यास होता है, उस जगह पे औसतन एवरेज अदर दूसरी जगह के उसमें देखेंगे, कंपैरिजन में देखेंगे, तो वहाँ पे चोरी है, जारी है, बलात्कारी है, चेन स्नैचिंग है, रोड रेज की प्रॉब्लम है, ये कम पाएगी और उन लोगों का जीवन जो है सुखमय और जीवन जो है आनंदित पाएगा। हम कई बार देखते हैं कि कुछ जगहों को निश्चित करके देखते हैं कि ये इलाका इसका है, ये इलाका इसका है, तो जो योग वाले इलाके होते हैं उनमें अक्सर शांति स्थापित होती है। तो इस प्रकार से हम समाज के अंदर योग का प्रचार-प्रसार करके शांति स्थापित कर सकते हैं और आजकल इसी समाज के लिए बहुत सारी सरकारों ने और कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी इसकी पहल की है। जैसे हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले पहल की थी कि हर गाँव ग्रामीण स्तर पे, हर गाँव के अंदर एक योगशाला बनेगी। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे एक योगा और नेचुरोपैथी का सेंटर बनेगा। ऐसे ही जिला स्तर पे एक योग का, आयुष का हॉस्पिटल बनेगा जिसके अंदर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा होगी। कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी यूनिट गाँव से लेकर के, ब्लॉक लेवल से लेकर के, तहसील लेवल से लेकर के और जिले लेवल तक की प्लानिंग योग की योगशालाओं को खोलने का है, स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने का है, योग सेंटर खोलने का है। तो इस प्रकार से जब हम इतनी छोटी इकाई से बड़े लेवल तक योग के केंद्रों को खोलने की जब सरकार ने मंजूरी दी है, केंद्र सरकार भी हम कई बार देखते हैं कि योग केंद्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की प्लानिंग है जो हरियाणा ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है। तो इस प्रकार से जब हम सामाजिक रूप से देखते हैं, तो भी रोजगार के बहुत सारे क्षेत्र हमें दिखते हैं क्योंकि हर गाँव में एक योग शिक्षक यदि नियुक्त होता है, तो हज़ारों गाँव होते हैं, लाखों गाँव होते हैं एक पूरे राज्य के अंदर। तो लाखों लोगों को यदि वो मिनिमम स्केल पर भी यदि वो सेवा में रखते हैं, तो भी 10,000, 15,000, 20,000 मिनिमम स्केल है। कुछ दिन पहले हम एक बार उत्तर प्रदेश में गए थे, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संघ है, उसकी तरफ से भी योग शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। हालाँकि वो 10-15 हज़ार रुपए ही एक मानदेय दे रहे थे, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश में रहने पर यदि आप 2 घंटे के 10-15 हज़ार रुपए भी प्राप्त करते हैं और अपने अन्य घर के कार्य, खेती कार्य करते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक आपके लिए मैं मानता हूँ अवसर है। ताकि इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति गाँव का पढ़ा हुआ है, जो गाँव में रहने वाला है, घर गाँव में है, तो गाँव में ही रह करके गाँव में ही नौकरी करेगा, गाँव में ही सेवा देगा, तो वो और लाभकारी है। यदि वो शहर में आता है तब 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, तो उसमें कुछ नहीं बचता है और गाँव में बहुत कुछ बच सकता है। तो ये एक सरकार की योजना है कि समाज को कैसे हम स्वस्थ रखें, समाज से कैसे हम बीमारियों को दूर करें। तो ये बहुत अच्छी योजना है और इसमें भी रोजगार के बहुत सारे अवसर हमें सामने दिख रहे हैं।
अब हम देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अक्सर हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है रोग निवारण के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और भारत का एक बहुत बड़ा भारत देश का अमाउंट जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगता है। अभी भी लग रहा है, कोरोना के टाइम में भी कई अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं। लेकिन यदि इसी रुपए के की बजाय हम योग केंद्रों को जिस प्रकार से कुछ प्लानिंग मैंने आपको पूर्व में बताई है, यदि करते हैं तो लोग स्वस्थ रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो जो मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो खर्च था, वो खर्च हमारा बहुत कम हो सकता है। वो केवल इमरजेंसी सेवाओं पे ही प्रयोग हो सकता है और जो सामान्य सेवाएं हैं, सामान्य जो रोग हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला, उन पर हम योग के द्वारा अपना ठीक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार हैं। आज हम देख रहे हैं कि सूचना और टेक्नोलॉजी के युग में लोगों का जो है मनोदैहिक विकार और मानसिक अशांति के साथ-साथ चिंताएं और तनाव बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत फास्ट काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी से ही हम यहाँ बैठे हुए विदेश में हमारे बातें सुन रहे हैं और अभी मुझसे पूर्व वक्ता की हम बातें सुन रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी और सूचना का युग है। इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोदैहिक विकार और मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट होता है, उनको एक चिंता होती है, उनको तनाव होता है, उनके मन में अशांति हो जाती है। तो ऐसी चिंता और तनाव योग के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं या ये कहें वैकल्पिक चिकित्सा या वैकल्पिक उपचार के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस कारण देखते हैं कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्पतालों में आज देखते हैं कि जैसे हम एम्स में, सफदरजंग में और देश के बड़े-बड़े अस्पतालों में भी योग शिक्षकों की और योग विभाग की निर्माण हो गया है। यहाँ तक कि दिल्ली के एम्स में भी योगा डिपार्टमेंट बन गया है और वो मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करता है। ऐसे ही सफदरजंग हॉस्पिटल है, चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे योग योग विभाग खुल चुके हैं और योग शिक्षकों की, योग टीचरों की, योग चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे भी केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान भारत सरकार के माध्यम से भी हजारों जगहों पर योग केंद्रों की स्थापना की गई है और वहाँ योग शिक्षकों को और आयुर्वेद शिक्षक और नेचुरोपैथी के टीचर्स को भी वहाँ रखा जाता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत सरकार तो काम कर ही रही है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो भी अपने यहाँ योग विभाग, नेचुरोपैथी विभाग, प्राकृतिक और आयुर्वेद विभाग की स्थापना कर रहे हैं और कुछ करने जा रहे हैं। इस मामले में भी स्वामी रामदेव जी ने बहुत अपूर्व काम किया है और अभी भी कर भी रहे हैं कि योग ग्राम बना करके लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैं कहना यही है कि सरकारी स्तर नहीं है, प्राइवेट स्तर पे भी लोग जो है अस्पतालों में, स्वास्थ्य क्लबों में इस प्रकार की योग शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं और इसके अनुसार आधुनिक काल में भी आधुनिक समय में है शरीर को स्वस्थ रखने और मन इंद्रियों को स्वस्थ रखना, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगों की निवृत्ति करना, ये योग से हम पूरा लाभ उठा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक रोजगार के क्षेत्र हमारे सामने हैं, चाहे वो सरकारी हो अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई क्लब हो या इस प्रकार की जितने भी आजकल तो छोटे-छोटे स्तर पे भी जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल होते हैं कॉलोनियों में, कस्बों में, उनमें भी जो है योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तो इस क्षेत्र में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योग शिक्षकों की बड़ी डिमांड है और यदि अच्छे योग शिक्षक प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार वो हॉस्पिटलों में जाकर के अपनी सेवा दे सकते हैं और उसके लिए बाकायदा सरकार और प्राइवेट लोग जो है इंटरव्यू आदि का प्रावधान रखते हैं। अब हम देखते हैं कि होटल और पिकनिक स्थल, क्योंकि आजकल जो है होटल और रिज़ॉर्ट जो है तनाव कम करने के भी साधन बन चुके हैं, मनोरंजन के साधन बन चुके हैं, एन्जॉयमेंट के साधन बन चुके हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ पे दारू-धप्पड़ होता था और लोग उसको बहुत बुरा मानते थे। लेकिन आज जब भी हम जाते हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, मंसूरी हो, नैनीताल हो, गोवा हो, हम और बहुत सारे लोग बिज़नेसमैन लोग या अन्य जो फैमिली वाले लोग हैं, ये पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं?
क्या आपके यहाँ सपा है, क्या आपके यहाँ जिम है, क्या आपके यहाँ योगा सेंटर है, आज हम पूछने लगे हैं। और आजकल तो अपनी अपनी जो नई सोसाइटीज जो बन रही हैं उनके अंदर भी योगा सेंटर, योगा हॉल, जिम, इन सब की स्थापना हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि होटलों और पिकनिक स्थान जो है वहाँ अब केवल केवल मनोरंजन और आयाशी की जगह नहीं है, वो अब जो है तनाव कम करने के लिए बहुत अच्छे स्थान बन चुके हैं। ये सभी स्थान जो है मानसिक तौर पर तरोताजा और आध्यात्मिक उन्नति के अब केंद्र बनते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार के अपने इवेंट भी शुरू करते हैं कि रिजॉर्ट खोल लिया है, बहुत बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, उसमें योग और नेचुरोपैथी का जो है, प्राकृतिक चिकित्सा का जो है कार्यक्रम चलाने लगे हैं। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को बुला करके उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इस प्रकार जो है योग अभ्यास के जो है ये सारे के सारे हब बन चुके हैं। और अब यही वजह है कि आज होटल और पिकनिक रिजॉर्ट मेहमानों को योग अभ्यास सिखाने के लिए योग शिक्षकों के नियमित रूप से और अनुबंध के रूप से सेवाएं लेते हैं। इसलिए होटल आदि के अंदर भी आप शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। और होटल ही नहीं है, आजकल तो जितने भी एम्बेसीज हैं, दूतावास हैं, हमारे दूतावासों में भी अक्सर हम जानते हैं हमारे मित्र लोग जाते हैं और योग कराते हैं। तो होटल है, रिजॉर्ट है, पिकनिक स्थल हैं और हमारी एम्बेसी हैं, इन सब के अंदर जो है योग शिक्षकों की भारी डिमांड रहती है। तो आप इनमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अब जो समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया, मीडिया के अंदर भी योग की बहुत अपार संभावनाएं हैं। आज के युग में लगभग सभी टेलीविजन चैनल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर के कोई ना कोई कार्यक्रम अक्सर चलाते रहते हैं, जिसमें दर्शकों को अपने आप को विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों से मुक्त रखने के लिए, कई तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याओं की रोकथाम के लिए तौर तरीके और एक पैटर्न कैप्सूल प्रोग्राम योग का बताया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं स्वामी रामदेव जी भी एक टीवी के साथ जुड़े हुए हैं और पर डे वो किसी न किसी विषय को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं, कभी डायबिटीज को लेकर के, कभी किसी को लेकर के। तो ये मीडिया, दृश्य और प्रिंट मीडिया जो है उन दोनों के लिए लागू होता है और अच्छा खासा जो है वो पेमेंट भी करते हैं। ये टेलीविजन चैनल के लिए योग विशेषज्ञों के नियमित आधार पर शिक्षकों को रखते हैं। और हम कुछ ऐसे लोगों को जानते भी हैं जो अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं और वो अनुबंध पे हैं, वो परमानेंट नौकरी पे हैं और वो टीवी के लिए कार्य करते हैं, नए नए आयाम लेके आते हैं योग के, नई नई बातें बताते हैं। तो ये भी जो है आपका दृश्य और मुद्रित जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें काफ़ी अच्छा आज योग के क्षेत्र में रोजगार है और अच्छा खासा वेतन भी देते हैं। और ये विभिन्न भाषाओं में जो चैनल्स हैं उन सब पे हैं। उसके बाद अखबार, पत्र पत्रिका, जाने माने प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञों के द्वारा अपने कॉलम लिखवाते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं योग के ऊपर और उनको अनेक डिबेट्स के अंदर, अनेक चर्चाओं के अंदर उनको आमंत्रित भी करते हैं। इसके लिए योग विशेषज्ञों को जो है अच्छा वेतन, अच्छा मानदेय भी दिया जाता है। अतः इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो मीडिया का जो स्तंभ है उसमें भी योग की अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अब हम देखते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होती है और आर्थिक स्तर प्रभावित होता है, वो कंपनियां और ऑफिसेस। तो आज जो जितनी भी कंपनियां हैं या ऑफिस हैं आज के युग में, उनके ऊंचे पर काम करने वाले जो पेशावर विशेषज्ञ होते हैं, या ये कहें कि कंपनियों में ऊंचे पद पर जो अधिकारी गण होते हैं, उनके एक बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। कंपनियां उनको एक बड़ा अमाउंट देकर के एक बड़ा लक्ष्य जो पूरा कराने का कार्य करती हैं। लेकिन अब उस कार्य को करने के लिए क्या है, व्यक्ति के अंदर तनाव तो रहेगा ही। जब समय कम होगा और टारगेट बड़ा होगा तो तनाव और चिंता होना स्वाभाविक बात है। तो ऐसे जब लोग बोझ तले दबते हैं तो उनको तनाव और अवसाद जो है अक्सर आ जाता है। तो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र में जो काम करने वाले इस तरह के जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए जो कंपनी के मालिक होते हैं या ऑफिसों के जो मालिक होते हैं या कंपनी होती हैं, जो नियोक्ता होते हैं,
वो योग के माध्यम से उनके तनाव को कम करने का विचार करते हैं और योग के माध्यम से उनके तनाव को कम करने का समाधान खोजते हैं। उनके लिए वो स्पेशल विशेषज्ञों को बुलाते हैं। इसको हम कॉर्पोरेट योगा भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनके लिए वो स्पेशल जो है योग विशेषज्ञों को बुलाते हैं और योग विशेषज्ञों की मदद ली जाती है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉय के समय को, कार्य करने के समय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक तो कार्य करने की क्षमता है और एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से वो कैसे कुशल हो सकता है, कैसे उसका माइंड शार्प हो सकता है और एक शारीरिक रूप से वो कैसे सुदृढ़ रह सकता है ताकि वो लंबे समय तक कार्य करे। अब मान लीजिए कोई 2 घंटे काम करके थक जाता है, 6 घंटे काम करके थक जाता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति योग का निरंतर अभ्यास करता है तो वो 8 से 10 घंटे तक काम कर सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 12-12 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं और वो थकते नहीं है। कभी भी उनके चेहरे पे थकावट हमें महसूस नहीं होती है। और यदि स्वामी रामदेव के बाद यदि योग की कोई शख्सियत ऐसी है जिसने योग का इंटरनेशनल लेवल पे ये कहें कि लोहा मनवाया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री हैं। और उनको हम अक्सर देखते हैं, वो कभी छुट्टी भी नहीं लेते हैं और उनकी जीवन शैली में योग एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से खाना पीना हमारे लाइफ का अंग है, उसी प्रकार से उनकी जीवन शैली का योग एक अंग है, प्राणायाम और ध्यान उनका अंग है। और वो जो है 18-18 घंटे काम करते हैं। तो इसमें भी हम जो है जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, उनको योग करा करके उनकी कार्यक्षमता का हम कार्यक्षमता को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो है वहाँ पे योग विशेषज्ञों की जो है मदद ली जाती है, विशेष प्रशिक्षण कराए जाते हैं, कैप्सूल प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है ताकि जो उनके कर्मी हैं, कार्य करने वाले अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं या जो मजदूर लेवल के लोग हैं, उनका जो तनाव है उसको दूर किया जा सके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज कंपनी और ऑफिस के अंदर भी कॉर्पोरेट योग के माध्यम से भी आप रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी जो हमारे समाज में सुधारने की जो कला है, वो जेल को हम मानते हैं। वैसे तो शिक्षा से ही सुधार आता है, लेकिन बिगड़े हुओं को सुधारने का एक बड़ा जो जिम्मेदारी जिसकी आती है वो जेल प्रशासन की आती है। तो जेल में भी आज जो है दंडात्मक कार्रवाई की बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण का पदार्पण हो रहा है। पहले तो जेल में जो है वो दंडात्मक कार्रवाई होती थी, लेकिन आज जेल के अंदर भी सुधारात्मक कार्रवाई होती है कि कैसे इस व्यक्ति की बुराई को निकाला जाए और कैसे इसके अंदर अच्छाई डाली जाए, कैसे इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाला जाए, कैसे इसके हाथों में रोजगार दिया जाए ताकि ये बाद में समाज में जाके दोबारा ये काम ना करे, अपने हाथों से कमाए, कुशल और सुखपूर्ण जीवन को जी सके। तो कहने का तात्पर्य है कि आज जो है जेल प्रशासन भी कैदियों के लिए जो है सुधार वाले दृष्टिकोण को अपनाए हुए है और उनके जो अपराध हैं, उन अपराधों को धोने के लिए या ये कहें कि उन अपराधों के समय पूरा होने पर वे एक कुशल नागरिक बन के निकले, इसलिए जेल के भीतर भी योग अभ्यास कराया जाता है और सिखाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं जेल में जाकर के इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग के कार्यक्रम करती हैं, करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है योग शिक्षक की नियमित नियुक्ति भी जेल प्रशासन करता है। और हर शहर में, हर जिले में लगभग जेलें हैं। तो यदि हजारों लोग एक-एक जेल में यदि योग कराते हैं तो हमारे लाखों, हजारों लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। देश की बड़ी और कड़ी सुरक्षा वाली जो जेलें हैं, अब अपराधियों के व्यवहार को सकारात्मक बदलाव के लिए सुधारात्मक उपाय उसके उनके अंदर भी किए जा रहे हैं। चाहे बड़ी से बड़ी जेल हो, जो तिहाड़ जेल जैसी बड़ी से बड़ी नामी-गिरामी जेल हो, वहाँ भी हम सुधारात्मक उपाय के तौर पर योग और संगीत के द्वारा उनकी मानसिक स्तर को चिकित्सा करते हैं और उनको जो है एक अच्छे जीवन देने का प्रयास हमारे जेल अधिकारी करते हैं। इसके लिए भी जो है जेल अधिकारी जो है योग के विशेषज्ञों का, योगाचार्यों का जो है वो अपने वहाँ पर एक अच्छे शिक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं और उनको एक अच्छा जो है वेतन भी प्रदान करते हैं। उसके बावजूद जो लाइफ का दूसरा स्तंभ है, खेल कूद जो है हमारा, जिसके माध्यम से आज हम इस सेमिनार में बैठे हुए हैं, खेल विभाग के माध्यम से, तो खेल कूद में भी योग जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल कूद और जो प्रतियोगिताएं हैं, मानवीय भावनाओं को उभारने वाले, उच्च तनाव और उन्माद वाले क्षेत्रों के रूप में उभर कर सामने आती हैं। क्योंकि हमारी जो प्रतियोगिताएं हैं, हमारी
जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं हमारे को उच्च तनाव में डाल देती है। मेरे एक मित्र वो कह रहे थे कि योग जो स्पोर्ट्स है उसको थोड़ा सा मुझे कम पसंद है। तो स्पोर्ट्स तो सारे ही ऐसे हैं, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, चाहे वो दौड़ हो, बैडमिंटन हो, जब तक चरम सीमा तक हम उसमें योगदान नहीं देते हैं, तन मन धन से समर्पित नहीं होते हैं, तब तक उस चीज को सामने आती नहीं है। योग तो वैसे भी साधना है, साधना तो सभी खेल हैं, लेकिन योग उन सब में प्रमुख साधना है। तो योग जो भी व्यक्ति फ्लेक्सिबिलिटी या जो इस प्रकार का आर्टिस्टिक योगा जो करते हैं, उनकी साधना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये शारीरिक साधना है। योग जो है शारीरिक साधना है। तो हम कह रहे थे कि खेल कूद में जो तनाव उभर के आता है अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, और हम अक्सर ये देखते हैं कि जितने भी क्रिकेटर होते हैं, जितने भी बैडमिंटन होते हैं या वेट लिफ्टर होते हैं, ये सारे के सारे अपने पर्सनल ट्रेनर रखते हैं। चाहे वो मलेश्वरी हो, चाहे वो सुशील पहलवान हो, चाहे धोनी हो, कपिल देव हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन कार्य करता है, योग शिक्षकों को अपने साथ रखता है। तो कह रहे कि खिलाड़ियों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं और खेल के मैदान में उससे बाहर लक्ष्य को उत्पन्न प्राप्त करने के लिए मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी जी, आवाज आपकी आ रही है आवाज़ आ आपको? रही है। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बस थोड़ी-सी कट जाती है और ओके। थोड़ा-सा अब क्वेश्चन आंसर लेने का भी टाइम है, तो आप कंटिन्यू अच्छा, करिए। जी, जी। ठीक है। अभी 10 मिनट और दीजिए मुझे, ज़्यादा नहीं। नहीं, तो नहीं, श्योर, श्योर, बिल्कुल, खेल बिल्कुल के जी। मैदान में हम अक्सर देखते हैं कि मसल्स पुलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, इंजरी हो जाती है, बैक की में खिंचाव आ जाता है, पिनली में खिंचाव आ जाता है, शोल्डर्स में खिंचाव आ जाता है। तो इस प्रकार की जो खिंचाव है, मसल्स पुलिंग है, तो उसमें भी जो है योग बड़ा समाधान करता है, उनको रिलैक्स करता है। उसके बाद जो खिलाड़ियों के जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो तनाव होता है, उसको दूर करने के लिए ध्यान के द्वारा हम उनको जो है उनके मस्तिष्क में एकाग्रता ला करके उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है अग्रसर करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शारीरिक मानसिक स्तर पे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो योग करके जो है वो एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयुक्त माहौल को प्राप्त करते हैं। खेल कूद के क्षेत्र में योग के बहुत सारे रोजगार हैं। बहुत सारे राज्य सरकारों ने खेल के क्षेत्र में योग को मान्यता प्रदान की है, क्योंकि जब रोजगार की बात है तो हम रोजगार की बात करते हैं। हम कई राज्यों को जानते हैं, जैसे हरियाणा राज्य है जहाँ पे योग को खेल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, और दिल्ली राज्य में योग को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। तो जो भी लोग हरियाणा के निवासी होते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यदि कोई पदक प्राप्त करते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो हरियाणा सरकार उसको उसकी शिक्षा के अनुसार उसके पद पर जैसे हरियाणा पुलिस में या खेल विभाग में उसको नौकरी प्रदान कर देती है। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले जिनको मैंने भी योग कराया है, वो इस प्रकार से अच्छे अच्छे पदों पे एसपी, डीएसपी और एसएचओ आदि के पदों पर भी योग के स्पोर्ट्स योग खेलने वाले लोग जो हैं नौकरी को प्राप्त कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो बहुत सारी सरकारें हैं जो इस प्रकार से आजकल योग को खेल का दर्जा दे चुकी हैं, और आने वाले समय में भी इस प्रकार की संभावनाएं ज़्यादा हैं कि योग के क्षेत्र में अनेक नौकरियां, अनेक रोजगार प्राप्त होंगे। और खेल कूद के माध्यम से भी, जैसे इसमें हम कई बार देखते हैं पुलिस में स्पोर्ट्स का कोटा होता है, खेल का कोटा होता है, तो आजकल उसमें भी जो है योग को इंक्लूड किया गया है, तो उसके माध्यम से भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम होम क्लास, पर्सनल क्लास की बात करते हैं। आजकल बड़े बड़े घरों के लोग, बड़े बड़े लोग और राजनेता लोग जो है अपने यहाँ पे योग शिक्षक को रखना
पसंद करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो स्वस्थ रहना चाहता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहे बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, सरकार में या वैसे पद पे प्रतिष्ठित लोग हों, वो योग शिक्षकों को अपने घर पे बुला करके योग करते हैं और उनको अच्छा मानदेय भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, स्वरोजगार आत्मनिर्भर, तो योग में सबसे अच्छा विकल्प जो है वो आत्मनिर्भर वाला भी है, स्वरोजगार वाला भी है। जो प्रधानमंत्री जी भी अक्सर ये बात कहते हैं कि स्वयं अपने कला को सीखिए और उसका प्रचार प्रसार कीजिए, नौकर मत बनिए, नौकरी मत कीजिए, आप मालिक बनिए, आप लोगों को काम दीजिए, लोगों को अवसर दीजिए। तो इसका स्वरोजगार के अंदर ये सारी बातें आती हैं। योग के क्षेत्र में जो है स्वरोजगार का मतलब है घर या शहर अथवा कस्बे, किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, जो आप जहाँ पे रहते हैं वैसे ही स्थान पे योग केंद्र, योग विद्यालय, योग सेंटर की स्थापना करें और वहाँ पे उसका संचालन करें और लोगों को योग सिखाएं और उनको उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। और ये जो योग सेंटर है, योग के केंद्र हैं, आज लगभग भारत में हर जगह के अंदर विद्यमान है और जितने खुलेंगे उतनी आवश्यकता हो रहा है। ऐसा नहीं है, जितने खोल सकते हैं, मैक्सिमम जितने खोल सकते हैं उतने ही वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास होगा योग का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि आप आत्मनिर्भर बने, आप योग के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें, आपने योग केंद्र खोलें, सरकार से मान्यता लें और सरकार उसमें आपकी आर्थिक रूप से भी सहायता करती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि रोजगार के क्षेत्र में योग जो है एक बहुत आज मुख्य रोजगार का केंद्र है और रोजगार प्रशिक्षा है, हमें योग का अपनाना चाहिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपनी मानसिक उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए, योग का अभ्यास कराना चाहिए। ये अभ्यास के साथ साथ हमें जो है रोजगार भी दे रहा है। अंत में मैं महर्षि घेरेन का एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। नास्ति माया सम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, अहंकारात परो रिपु। ये कह रहे भाई माया के समान कोई पाप नहीं है और योग से बड़ा कोई बल नहीं है। वो आध्यात्मिक बल वो योग के अंदर है, उसके अलावा किसी के अंदर नहीं है। और ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं है और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए अहंकार को त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करके और ज्ञान की नैया पे बैठ करके योग के बल को प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव भी शिव संहिता में कहते हैं, यस्मिन ज्ञाते स्वरमिदम ज्ञातम भवति निश्चितम, कि योग एक ऐसा मार्ग है जिसको जान लिया, जिसको प्राप्त कर लिया तो इस संसार के सभी विषयों को जान लेते हैं, कोई अछूता नहीं है। इसलिए योग का अभ्यास करना चाहिए। मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुरुजी हैं उनसे मैं आशीर्वाद लूंगा और जो कुछ मेरे विद्वान साथी मुझसे पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है जी। योग व्यक्तिगत रूप को ही नहीं संवारता, योग सामाजिक रूप को भी संवार सकता है। बिकॉज एक कल्चर, एक कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ एंड पीस and harmony is very important, because the social fabrication and social strata is different financially, emotionally, सामाजिक तौर पे हम लोग डिफरेंट विभिन्न जातियों से आते हैं, विभिन्न भाषाओं से आते हैं, लेकिन एक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे इम्पोर्टेंट जो मूल्य है वो यही है कि हम सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर दिमागी तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी पीस और हार्मनी बनाकर हम अपने समाज को आगे लेकर जाएं। एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन एक अभी आया है, योगा में रोजगार को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन हो अभी। हाँ जी मैम, प्लीज बताएं। लेकिन मुझे लगता है वो तो आपने पूरे ही सेशन में यही बताया है कि रोजगार को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो पहले आया हुआ था वो ये है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिग्री, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा करके भी योग सिखा सकते हैं, योग के टीचर बन सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर डिग्री की क्या ज़रूरत है? सो ये डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के
बीच में हो सकता है बहुत लोगों को भी कंफ्यूजन हो, ये हम ये आपसे चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके आते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के होते हैं, जबकि हमारे जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो बैचलर ऑफ योगा, एमए इन योगा, डिप्लोमा इन योगा। तो डिप्लोमा इन योगा 1 ईयर का, बैचलर इन योगा 3 ईयर का। तो बैचलर इन योगा के बाद ही या बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हम 1 ईयर का योगा डिप्लोमा करते हैं, और 1 ईयर का योगा डिप्लोमा के बाद हम पीजी एमए योगा करते हैं। तो जो लोग सर्टिफिकेट को लेके आते हैं वो केवल योग के जानकार हैं, बस। इससे ज्यादा सरकार उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है या उनको कोई महत्व नहीं देती है। वो ये कहती है कि इनको योग की बेसिक जानकारी है, अब ये योग को समाज में करा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो बैचलर ऑफ योग है, डिप्लोमा इन योगा है और एमए इन योगा है, वो ये कहते हैं कि ये शिक्षित लोग हैं योग के अंदर, ये प्रशिक्षित लोग हैं, ये शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी तौर पे टीचर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो केवल एक योग आचार्य बनना समाज के लिए और एक विधि के विधान के द्वारा, संविधान के द्वारा सरकार की सेवा में, सरकार के पद पे प्रतिष्ठित होना। तो जो सोशल वर्कर हैं वो है सर्टिफिकेट वाले, और जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में टीचर लगने हैं वो है डिग्री वाले। तो डिग्री का यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल टीचर, माध्यमिक स्कूल टीचर और हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर, वो डिग्री वाला ही लग सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स वाला नहीं लग सकता। ऐसे ही कॉलेज में जो लोग पीएचडी करके आए हैं, जो लोग नेट करके आए हैं, तो जिनके पास वो वाली भारी भरकम डिग्रियां हैं, एमए, पीएचडी, नेट, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे लग सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स को तो अलाउ ही नहीं है फॉर्म भरना भी। तो आप समझ जाइए, जहाँ स्वरोजगार की बात है, सामाजिक जागृति की बात है, सामाजिक चेतना की बात है, अपने रोजगार की बात, वहां तक है सर्टिफिकेट कोर्स। और जहाँ सरकार के अंदर आने की बात है, कॉलेज में आने की बात है, स्कूल टीचर में आने की बात है, यूनिवर्सिटी टीचर में आने की बात है, प्रोफेसर बनने की बात है, तब फिर आपको चाहिए डिग्री। जी। मुझे लगता है अभी भी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, 12वीं पास बच्चा जो है वो 10वीं से नीचे के लोगों को कुछ भी पढ़ा सकता है अगर उसमें क्षमता है। जैसे हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स करते हैं, वो 10वीं तक के बच्चों को बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स को उनका ज़्यादा अच्छा समझ आता है क्योंकि वो एक लेवल पे आके उनको समझा सकते हैं। तो जो लोग सर्टिफिकेट करते हैं, छोटे डिप्लोमा करते हैं, वो योगासना अच्छे से करा सकते हैं, लोगों को उन 10, 20, 50 आसन के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, उसकी विधि करने की अच्छे से बता सकते हैं, और बीमारियों से रिलेटेड थेरेप्यूटिक योगा को यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अनुसरण करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए, जैसे अगर प्रोफेसर बनना है फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स में, तो आपको डिग्री चाहिए, बैचलर चाहिए, मास्टर्स चाहिए, यूजीसी नेट क्लियर चाहिए, एमफिल, पीएचडी, और प्रोफेसर्स बनना है तो उसके आगे की हमारी कवायद अलग है। तो हमारा यहाँ पर ये मकसद है, कल के व्याख्यान से भी, आज के व्याख्यान से भी, कि जिन लोगों को अपने समाज में करोड़ों पॉपुलेशन ऐसी है जिसको अपना स्वास्थ्य जो है रखने में दिक्कत आ रही है, डायबिटिक हो रहे हैं, प्री डायबिटिक हो रहे हैं, आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, जिसमें योगा सबसे सेफ है, क्योंकि बाकी उछल कूद में हो सकता है हड्डियों में D3 कम है, कैल्शियम कम है, तो योगा को हम थेरेपेटिक वैल्यू देकर हम उसको सिखा सकते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जो योगाचार्य हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो एक आम जनता को योगासना सिखाने के लिए टाइम स्पेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमारी अलग अलग फौज तैयार है।
हमारे क्योंकि समाज बहुत अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। सबको व्याख्यान की जरूरत नहीं है, सबको मोक्ष की जरूरत नहीं है, सबको साधना और समाधि में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसीलिए हमारे ये योगा फेस्टिवल का इतना लंबा 21 दिन का कार्यक्रम देश विदेश से स्पीकर्स के जोड़ने का मकसद ही यही था कि योगा के बहुत सारे आयाम हैं, समाज को हर आयाम चाहिए। अब हमारे जैसी फैकल्टी जो प्रोफेसर्स हैं, जो एक बहुत हाई लेवल पे किताबें लिख रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है, उनको अपने एक सुपर सब कॉन्शियस माइंड को जगाने की ज़रूरत है। तो हमें एक विभिन्न प्रकार का एक स्पेशलाइज्ड योगाचार्य की खोज है। लेकिन अगर मेरी मदर हैं 74 इयर्स की, जो आर्थराइटिस पेशेंट भी हैं, उनको अगर मुझे योगा करवाना है तो मुझे बहुत बड़े योगाचार्य की जगह मुझे एक ऐसा सर्टिफाइड ट्रेनर चाहिए जो उनको उनकी एज, उनकी कंडीशन के हिसाब से योगा करा सके। तो ये मेरे को लगता है खुद स्वयं योगा में जो लोग हैं उन्हीं को रोजगार की संभावनाओं को समझ नहीं आ पा रहा, जिनमें से एक दो लोगों ने शिकायत की है कि धरातल पे कोई काम नहीं है और योगा ट्रेनर्स को सरकार की तरफ से नौकरी नहीं है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, जिसमें डिग्रीज प्रॉपर 3 साल 4 साल की डिग्री, मास्टर डिग्रीज चाहिए। लेकिन हमारे समाज का तबका जो करोड़ों की संख्या में बीमारियों से जूझ रहा है, जिनको वेट लॉस की ज़रूरत है, बीपी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करने वाले लोग, जिनके लिए समाज में स्पेशल योगा फेटर्निटी ही ये कहती है कि ये योग के बारे में क्या जानते हैं, क्या कराएंगे। 1 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद, 1 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त कोर्स है, 21 दिन के कोर्स हैं, वो सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक इंटेंसली योगासना के प्रैक्टिकल और योगा फिलॉसफी, थेरेपेटिक योगा, उसके बारे में थ्योरी, साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। देखिए कभी कभी हम इसको गलत समझ लेते हैं। साल भर का डिप्लोमा, 6 महीने के डिप्लोमा में हमारा जो टाइम टेबल होता है वो डिफरेंट होता है। जब हम शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं तो उसके लिए टाइम टेबल बहुत इंटेंस हो जाता है। सुबह 6 बजे महामृत्युंजय जाप और गायत्री मंत्र के जाप से जो इंटेंसली योगा सिखाया जाता है 21 दिन के कोर्स में भी, 200 आवर्स, 500 आवर्स, 300 आवर्स, वो ज़्यादातर पॉपुलेशन को की डिमांड है और ज़्यादातर पॉपुलेशन को वो हेल्प कर सकते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सभी अगर साइंस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो सभी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकते हैं, और जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लेवल पर हैं उनके लिए न्यूक्लियर साइंसेस और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जहाँ के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो 12th क्लास के बच्चे को आकर साइंस पढ़ाएं। तो बहुत लेवल्स जो हैं आगे तक जा रहे हैं। करोड़ों की हमारी जनसंख्या है, हमारे खुद के देश की, देश विदेश की। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते कि 6 महीने का डिप्लोमा, 21 दिन का योगा कोर्स, इंटरनेशनल कोर्स, और हमें समाज के लिए एक जो संभावनाएं हैं उनको निरोग करने की, उसको जो है बिल्कुल फोकस होके चलना पड़ेगा। बाकी एक्सट्रीम साइंसेस जो हैं वो लेवल अलग अलग आते रहेंगे। तो धन्यवाद आज के व्याख्यान के लिए। और अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगी डॉक्टर राजेंद्र लाल को टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद मैम, और सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से धन्यवाद। गुरुजनों को प्रणाम। बहुत प्रणाम। डॉक्टर राजेंद्र लाल। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। Pranam and good mornings to one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks to today's wonderful session. First and foremost, our thanks goes to Dr. Nina Budziwiskova, Department of Indology, University of Wrocław, Poland, who very kindly accepted our humble request to grace today's session with your much relevant topic in present scenario, yoga therapy in troubled world. Your august presence provides the much needed encouragement to the participant and students, as present time have marked with
the fear and worry, much sadness and despair, and much anger and aggravation. I'm humbled and grateful as your address would serve as a beacon light to develop the mind over time and cultivate mental immunity and heal negativity in the depth of our mind and heart. For all that, our humble and sincere thanks. इसी क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर योगा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आज के प्रातःकालीन सत्र को संबोधित किया। का शीर्षक रहा योगा एक रोजगार परक शिक्षा। योग की एक अपनी विशिष्ट परंपरा है जो हमें स्वस्थ और शारीरिक सुष्ठव के प्रति जागरूक करता है और उसके लिए मार्ग भी दिखाता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज यह सत्र उन सभी लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा जो योग को एक रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं। महोदय, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। I would like to thank our beloved principal Dr. Rajiv Agarwal for all words of wisdom that radiates a source of energy within us. Your thoughtfulness is a gift we will always treasure it. Thank you very much, sir, for being with us. I take this opportunity to express our sincere thanks to the respected teachers, scholars, yoga practitioners, and participants all across the world through Zoom and Facebook Live. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence to this session. We extend our thanks to Dr. Anjum Padial, today's moderators, for doing everything. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Dr. Aditya Saxena, convener IQAC, for continued technical support. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivating and dedicated colleagues working in various committees in making arrangements for this webinar. Thank you, one and all. And once again, my sincere apologies to those who inadvertently I missed out and who are making no stone unturned to make this webinar successful. We thank you for being with us this morning. It's been really a very great pleasure. Dhanyavad. Namaste. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Rajendra. Thank you so nicely. Thanking everyone from the organizing committee, because that is the backbone of our program, where the technical team is working so hard day and night to deliver all the our lectures on all the available platforms. कल के लिए मैं announce करना चाहूँगी again, कल हमारे पास फिर से 2 speakers हैं, so we will start sharp at 10 o'clock. Dr. Avdesh Kumar Shirotia will join us from Fiji. He is working in Fiji University, and the next speaker, Dr. Balwant Singh, will join us for the second session, telling us all about the Hasta Mudra. So both Dr. Avdesh is going to talk about mindfulness meditation. So both the sessions are very important tomorrow. We will start sharp at 10 o'clock. So please join us on time. And I would like to thanks everyone for the participation. It's a good number of participation. Thank you all. We hope we are giving all kind of wisdom to you from different eminent speakers. Thank you one and all, and namaste from Deshbandhu College.